Today we are going to discuss Unit 2, Chapter 2, Teleprime, and we will do the very quick revision of this chapter and examples of Teleprime. I already uploaded, but I will show you the just how to pass the entries and create ledgers in different videos. You can go to my YouTube channel and find the videos related to it. But here, what is our focus? Here in this video, we are going to learn about theory questions and different types of MCQ and what will come in exam. And so we will do very quick revision for the same. So, what is the history of Tally? During the 1980s and 90s, accounting was done manually, and the person who is doing accounting is called uh, Munimji. You know very well. In the previous video, we have done this. So now, what is Tally? It is a multilingual acceleration technology engine. What it is easy to use and is designed to simplify complex day-to-day activities associated with an enterprise. जो एंटरप्राइज से डे टू डे एक्टिविटी है उसको सॉल्व करने के लिए टैली का फीचर बनाया गया है टैली सॉल्यूशंस को फाउंडेड इन 1986 बाय श्याम सुंदर गोयनका एंड हिज सन भरत गोयनका तो ये आपको एमसीक्यू पर्पस के लिए भी याद रखना है इट बिगेन्स एज अ पेट्रोनिक फाइनेंशियल अकाउंटेंट एज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन द कंपनी was incorporated in 1991 and was renamed in Tele as Tele Solution in 1999. So these are very important for MCQ purpose also. Then Tele Solution Private Limited released its first version, namely Tele 3 in 1990s. So different types of now right now Tele 4.0 is launched, Tele Edit Log is launched by the company. So this is about the some basic history of the Tele. Now the latest version of Teleprime was released. Latest edit log with the name of edit log. In that digital signature is also you can do the digital signature also. Now what are the features of Teleprime? It will do the invoicing and accounting. It will do inventory management also, that like valuation of stock, manufacturing batch, expiry date, job costing, etc. Insightful business reports can be developed with the help of Teleprime. You can do GST and taxation related come work in Teleprime. You can also do the TDS and TCS calculation, payroll, statutory such as PF and ESI and employee income tax. ये सब भी आप Teleprime की मदद से कर सकते हैं. You can manage cash flow and credit flow management. You can do with the help of Teleprime. Multitasking capabilities without hassle of switching between multiple instances of Tally or worry of losing your progress. Go to feature. Now, what is go to feature? You can search anything. If you want to find anything, so then you can use the go to feature. Here it is given, and it will give your insight about the business in a better way. You can do banking also with the help of Teleprime. Access business online data online with the help of Teleprime, like summary, sales, purchase register, profit and loss account, balance sheet, and many such report can be developed with the help of Teleprime. You can create data security based on security level. Teleprime ensures that access to your data is restricted based on your choice. Now, first of all, how to download and install of Teleprime in your PC, laptop, etc. So this is the link. If you click this link, or you can write down this link in your browser, so that you will download Teleprime. Then different steps you have to follow. Step 2, after pasting the link, you have to click the button download. Then step 3, now check the executable file in your download folder of the system and open it. It will prompt a confirmation to make changes to your system, and you have to click yes. And then now press the I button on the keyboard, or you can click on the install button to start the installation process. So you have to click this install button, and your Tele will install in 2 to 5 minutes. This and step 7, now set up the completed, click S button
on keyboard or click Start Tally Prime button, Tally will automatically start. So here you have to as Start Tally Prime. Now these functions I have highlighted for you. So if you follow this 8 step, now click on Allow Access button to start Tally Prime. यहाँ पे Allow Access करना पड़ेगा आपको. Step 9 में now click A button to keyboard और click Accept button. आपको Accept करना पड़ेगा next one में. And then now see the interface of Tally. ये आपको interface दिखेगा. अब यहाँ पे educational in continue in educational mode. U stands for use license from network. R for reactivate existing license and A for activate new license. आपको अभी एजुकेशनल वर्क में बेस में काम करना है तो टी प्रेस करना है. हाउ टू स्टार्ट टेली प्राइम सॉफ्टवेयर, तो जस्ट आपको टी प्रेस करोगे डेस्कटॉप में स्टार्टअप स्क्रीन में क्लिक ऑन कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड और यू कैन जस्ट प्रेस टी ऑल्सो. ये इसका पाथ दिया है, देखो ये पूरा पाथ आपको याद रखना है. अगर आपको एजुकेशनल मोड में कंटिन्यू करना है तो टी प्रेस करना पड़ेगा. गेटवे ऑफ टेली प्राइम, तो गेटवे ऑफ टेली प्राइम में आपको ये स्क्रीन सब दिखेगा. गेटवे ऑफ टेली को GOT हम बोलेंगे इसके बाद से. तो देखो ये स्क्रीन दिखेगा, ये आपको ये दिस इज गेटवे ऑफ टेली. इन दैट मास्टर क्रिएट अल्टर चार्ट्स ऑफ अकाउंट, ट्रांजैक्शन, वाउचर, डे बुक, यूटिलिटी, बैंकिंग, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टॉक समरी, रेशियो एनालिसिस, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, क्विक. ये होता है ये जो है ये आपका हॉरिजॉन, ये वर्टिकल बार है, ये हॉरिजॉन्टल बार बार है. आपको वन बाय वन सारे समझना है. सो पहले हम ये टॉप बार मेनू को समझेंगे, जहाँ पे यहाँ पे जब भी एक एक अंडरलाइन किया है उसका मतलब अल्ट के होता है. अल्ट के का यूज क्या है, ये अल्ट वाई फॉर डेटा, अल्ट जेड फॉर एक्सचेंज, अल्ट जी फॉर गो टू फीचर, अल्ट ओ फॉर इंपोर्ट, अल्ट ई फॉर एक्सपोर्ट, अल्ट एम फॉर ईमेल एंड अल्ट पी फॉर प्रिंट. F1 is stands for help. सो कंपोनेंट ऑफ गेटवे ऑफ टेली प्राइम, ये सारे आपको शॉर्टकट कीज याद रखना है. इट कैन बी आस्क इन दी MCQ ऑल्सो. नाउ कंपोनेंट ऑफ टेली प्राइम क्या क्या है, तो टेली प्राइम में बहुत सारे कंपोनेंट दिए हैं. जैसे अल्ट के की मदद से आप क्या कर सकते हो, यू कैन क्रिएट सिलेक्शन, अल्टरेशन, असाइनिंग टेली इन वेरियस मोड, सेटअप, कंपनी फीचर एंड सिक्योरिटी एस्पेक्ट. ये अल्ट के से वेरियस ऑपरेशन ऑन कंपनी. अल्ट वाई से क्या कर सकते हो, डेटा फॉर कंपनी, डेटा मैनेजमेंट टास्क लाइक डेटा बैकअप, बैक्ड अप डेटा, रिस्टोर, कंपनी डेटा स्प्लिटिंग फॉर न्यू ईयर, कंपनी एट द ईयर एंड, एंड टू सेटअप डिफॉल्ट डेटा पाथ. ये सब आप अल्ट वाई से कर सकते हो. अल्ट जेड से क्या कर सकते हो, एक्शन. दिस ऑप्शन इज यूज टू सिंक्रोनाइज ऑफ डेटा, synchronization of data between remote tally installation in multiple places like head office and branches, and related configuration, servant client role, and set up a new for a data exchange between connected tally installation and related security. ये exchange से कर सकते हो. go to feature से आप कोई भी, जैसे यू कैन परफॉर्म फ्रीक्वेंटली यूज टास्क ऑफ डेटा एंट्री एंड रिपोर्टिंग फ्रॉम सेंट्रलाइज प्लेस, उसका शॉर्टकट क्लिक गो टू और कंट्रोल जी और अल्ट जी. गो टू इज ए फ्रीक्वेंटली यूज बाय ऑपरेटर एज अल्टरनेट टू गो टू मेन मेनू टू गेट important report directly and perform masters and voucher entry alteration. Importation, अल्ट ओ से क्या कर सकते हो आप, import of masters and transaction data exported from tally in .xml from import bank data into tally for auto bank reconciliation and data import related to configuration setup. Now export से क्या कर सकते हो, you can alt E से export master and transaction data into XML format and to be imported into another tally company data. आप ईमेल कर सकते हो alt M से email to email report using popular email client like Gmail, Yahoo, Outlook, etc. And you can print your report by using alt P feature. Now if you need any help then you can press F1. Now gateway of tally main area. Gateway of tally main area, current status. Left part is about current status, current period, current date, currently active and selected companies. ये आपको current status में दिखेगा. Tally main menu में आपको right part shows the current tally main menu. The main menu becomes invisible on exploiting a tab in top menu bar. अब वो चला जाएगा जब आप नए मेनू में जाओगे तब. On selection of any option at main menu,
द सिलेक्टेड नेक्स्ट लेवल सब मेनू एंड फाइनली सिलेक्टेड टास्क स्क्रीन और रिपोर्टेड अपीयर्स। जैसे जैसे आप अलग चले जाओगे तो आपको नया नया वर्टिकल बार मेनू मिलता जाएगा। अगर आपको यहाँ पे अगर डेट चेंज करना है, करंट डेट सेटिंग के लिए आपको कौन सा प्रेस करना पड़ेगा, F2, याद रखना। अगर आपको करंट पीरियड का सेटअप करना है तो अल्ट F2 प्रेस करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पर्पस के लिए है। अगर आपको कैलकुलेटर साइड बाय साइड कैलकुलेटर ऑन करना है तो कंट्रोल ए प्रेस करना पड़ेगा और ऑफ करने के लिए भी सेम की प्रेस करना पड़ेगा। नाउ कंपनी क्रिएशन के लिए क्या स्टेप है? अगर आपको कंपनी क्रिएट करनी है तो अल्ट के से आप कंपनी क्रिएट कर सकते हो, या तो F3 फंक्शन करके कंपनी भी क्रिएट कर सकते हो। जैसे ही कंपनी क्रिएट करने का ये बात है, ये आपको एक क्वेश्चन भी आ सकता है 5 टू 7 मार्क में कि हाउ टू क्रिएट कंपनी, राइट डाउन द स्टेप्स ऑफ क्रिएटिंग कंपनी इन टैली प्राइम। अगर ऐसा स्टेप्स आता है तो आपको ये सारे स्टेप्स लिखने पड़ेंगे। वन बाय वन आपको ये सारे स्टेप दिए हैं। जैसे सबसे पहले आपको कंपनी का नाम एंटर करना पड़ेगा, फिर मेलिंग नेम, एड्रेस उसका, देन एंटर स्टेट कोड, state, country and other contact details like email, phone, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर एक्सेट्रा आपको एंटर करना पड़ेगा। ऐसा इंटरफेस दिखेगा। देखो ये हाइपोथेटिकली मैंने आपको क्रिएट करके दिया है। जैसा ये यहाँ पे 2020 आपको 2023, 24 व्हाटएवर इज योर फाइनेंशियल ईयर एंड बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम वो दिया है, वो आपको लिखना है यहाँ पे। ये सारा का सारा डिटेल हाइपोथेटिकली क्रिएट किया है। इस तरह से आपको डेटा एंटर करना है। फिर आपको पूछा जाएगा डू यू वांट टू एक्सेप्ट, यस और नो आपको एक्टिवेट करना है। एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पे सेव करने के लिए कंट्रोल ए होता है, यहाँ पे कंट्रोल एस नहीं होता। और या तो फिर आप वाई प्रेस कर सकते हो। जैसे ही कंपनी क्रिएट हो जाएगा आपको, यू कैन यूज F11 टू इनेबल और डिसेबल एनी फीचर व्हेन नीडेड। आपको कोई भी फीचर ऑन या ऑफ करना है तो आप F11 को प्रेस कर सकते हो। यहाँ पे देखो शो मोर फीचर यस एंड शो ऑल फीचर यस किया है, इसलिए आपको सारा फीचर दिखेगा। अगर यहाँ पे ये नो होगा तो ये सारा फीचर्स नहीं दिखेगा, आपको सिर्फ थोड़े बहुत फीचर्स दिखेंगे। तो आपको अगर स्टार्टिंग में सीखना है तो ये मेंटेन अकाउंट्स ओनली यस करना है एंड इन्वेंटरी में नो रखना है, जीएसटी में भी नो रखना है। बट अगर आपको इन्वेंटरी मेंटेन करना है तो यस रखिए, और जीएसटी यस रखना है तो यस भी कर सकते हो। बट वो धीरे-धीरे सीखिए कब हमें इन्वेंटरी में यस करना है, या जैसे आप सिर्फ अकाउंट मेंटेन करते हो, जैसे प्रोफेशनल पर्सन है, डॉक्टर, लॉयर, तो गुड्स में डीलिंग नहीं करता, वो अकाउंट ओनली में जाता है। जो जैसे स्टोर कीपर है या वेंडर है या ट्रेडर है, वो इन्वेंटरी भी रखता है, इसलिए उसको यस करना पड़ता है। जीएसटी में रजिस्टर्ड हो तो आपको जीएसटी में यस करना पड़ेगा। इस तरह से जो-जो फीचर आपको चाहिए, एक्टिवेट कभी भी आप कर सकते हो। F11 प्रेस करके। In case you want to specify additional detail for your company, press F12। So अगर आपको कोई additional detail ऑन करना है कंपनी क्रिएशन के टाइम पे तो आपको F12 प्रेस करना है। जैसे डेबिट क्रेडिट की जगह पे टू बाय या टू बाय की जगह पे डेबिट क्रेडिट यूज करना है तो आप वो आपका एडिशनल फीचर है जो आप F12 की मदद से कर सकते हो। नाउ ये use F12 configuration in Tally Prime screen to alter the on-screen option configuration as per your preference. This is possible on all screen in Tally Prime where there are additional optional available. तो देखो इस तरह से आपको, जैसे मैंने आपको बताया अभी ये यूज क्रेडिट डेबिट इंस्टेड ऑफ टू बाई इन टेली प्राइम, तो यहाँ पे लिखा है। इस तरह से ये सारे फीचर जो भी आपको ऑन ऑफ करना है वो आप कर सकते हो यहाँ पे। जैसे सिलेक्ट कॉस्ट सेंटर क्लास, ये सारे फीचर्स आपको दिए गए हैं। अब जैसे यहाँ ऑन ऑफ करोगे आपको ये दिखेंगे। तो आप F12 कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन में क्या-क्या कर सकते हो आप, ये यहाँ पे दिखा है। प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल, यूज़ टेली वॉल्ट पासवर्ड टू एनक्रिप्ट कंपनी डेटा, यूज़ यूज़र एक्सेस कंट्रोल, प्रोवाइड एडिशनल बेस करेंसी डिटेल्स एक्सेट्रा, ये सब आप F12 से कभी भी कर सकते हो। अगर आपको कंपनी को अल्टर करना है तो क्या है उसका, कि अल्ट के करके आपको अल्टर में जाना है और जो भी नेसेसरी चेंजेस करना है आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे यहाँ पे कंपनी थी और यहाँ पे सिक्योरिटी में यस नो करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। इस तरह से कोई भी कंपनी का अल्टरेशन करना है तो आप उसको करने के बाद आप कंट्रोल प्लस ए कर सकते हो। अगर आपको कंपनी को शट करना है तो आफ्टर क्लिकिंग द कंपनी मेन्यू इन द ऑप्शन बार, आपको क्या करना है, F3 प्रेस करके शट कंपनी प्रेस कर देना है तो आपको दिख जाएगा। यहाँ पे एक शॉर्टकट की दिया है, यू कैन यूज कंट्रोल प्लस F3 शॉर्टकट टू शट डाउन दी कंपनी। ये आपको याद रखना है फॉर एमसीक्यू पर्पस ऑल्सो।
और आपको ये 2-3 मार्क या 5 मार्क में भी पूछ सकते हैं कि इफ यू वांट टू डिलीट अ कंपनी एक्सप्लेन द प्रोसेस। आपको अल्ट के में जाके कंपनी को अल्टर करना है। अल्टर करने के बाद आपको प्रेस अल्ट डी प्रेस करना है। फिर आपको ये पूछेगा डू यू वांट आर यू श्योर दैट यू वांट टू डिलीट द कंपनी, फिर यस या नो व्हाटएवर इज you have to press. But remember, if you have deleted the company one, then it will not be recover again. So we can permanently delete the company by pressing the enter button again. So आप एक बार डिलीट कर दिया तो उसको वापस नहीं ला सकते, तो ध्यान से आपको अगर डिलीट करना है तो सोच समझ के आपको डिलीट करना चाहिए। नाउ का एक एक्टिविटी दी है, जैसे यहाँ पे अलग अलग कंपनी का नाम, नेम योर फुल नेम फॉलोड बाय ट्रेडर्स, आपका कंपनी का एड्रेस ये सिलेक्ट करके आपको कंपनी बनाना है। अकाउंटिंग इन टैली प्राइम, आप अकाउंटिंग कर सकते हो टैली प्राइम में, ये सारे फीचर्स दिए हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंट में आपको पता ही है कि इफ यू आर कॉमर्स स्टूडेंट्स यू शुड नो कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। ये गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल ये आपका रियल अकाउंट का रूल है, पर्सनल का नहीं है, मिस्टेक से यहाँ पे लिखा है। पर्सनल अकाउंट का डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, एंड नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो ये एक चेंज करना है खाली, बाकी सब बराबर है। फिर टाइप्स ऑफ मास्टर में अकाउंटिंग मास्टर होता है, स्टैट्यूटरी डिटेल्स होता है, इन्वेंटरी मास्टर्स होता है। फिर चार्ट्स ऑफ अकाउंट में आपको ये याद रखना है, टैली प्राइम में टोटल 28 प्री डिफाइंड अकाउंटिंग ग्रुप्स है, उसमें से 15 प्राइमरी ग्रुप्स एंड 13 सब्सिडरी ग्रुप्स है, सेकेंडरी ग्रुप्स है, अंडर द कैटेगरी ऑफ असेट्स, लायबिलिटी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। यहाँ पे उसको नाम से वेरीफाई किया है, देखो ये 15 प्राइमरी ग्रुप्स है एंड 13 सब ग्रुप्स है, उसका नाम यहाँ पे दिया गया है। आपको ये सारे शॉर्टकट याद रखना है। F2 चेंज डेट के लिए है, F अल्ट प्लस F2 टू चेंज पीरियड, F4 कॉन्ट्रा एंट्री के लिए है। कॉन्ट्रा एंट्री किसको बोलते हैं, जैसे इफ यू वांट टू ट्रांसफर कैश इनटू बैंक, बैंक टू कैश, बैंक टू बैंक, so this type of entry can be passed using contra voucher. F5 is used for payment voucher, payment transaction. Alt plus F5 डेबिट नोट के लिए यूज होता है। परचेज रिटर्न, इंक्रीज इन परचेज वैल्यू, उसके लिए होता है। F6 मीन्स रिसिप्ट वाउचर के लिए होता है। अल्ट प्लस F6 क्रेडिट नोट के लिए, टू सेल्स रिटर्न एंड डिक्रीज इन सेल्स वैल्यू के लिए यूज होता है। F7 जर्नल के लिए होता है, फॉर एडजस्टमेंट एंट्रीज, फॉर एंट्रीज विच आर नॉट कवर्ड बाय स्पेसिफिक वाउचर टाइप, उसके लिए अब F7 यूज होता है। अल्ट F7 स्टॉक जर्नल है, अगर एक स्टॉक ट्रांसफर करना है आपको तो अल्ट 7 यानी एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन, शोरूम से गोडाउन में या गोडाउन से शोरूम में कुछ ट्रांसफर करना है तो अल्ट प्लस F7 यूज कर सकते हो। F8 सेल्स के लिए है, देन F9 इज फॉर परचेस ट्रांजेक्शन। कंट्रोल एच मीन्स अगर आपको मोड चेंज करना है, चेंजिंग वाउचर मोड फ्रॉम डबल एंट्री टू सिंगल एंट्री एंड वाइस वर्सा, तो कंट्रोल एच आप यूज कर सकते हो। आपको मैंने पहले भी बताया F11 फंक्शन फीचर्स के लिए, F12 इज कॉन्फ़िगर फॉर बैंक, जीएसटी डिटेल एक्सेट्रा। कंट्रोल प्लस एल अकाउंटिंग इनवॉइस एज वाउचर, मोड चेंज फॉर परचेज एंड सेल्स वाउचर। ये सारे शॉर्टकट कीज आपको याद रखने हैं क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पर्पज ऑल्सो, और आपको फाइनल एग्जाम में भी ये काम आ सकते हैं कि एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉर्टकट, like we can ask what is the use of alt plus F2, what is the use of F4, like that different types of question can be framed. Now this is the transactions. You can you can take the screenshot of this transaction and pass entries in teleprime. I had already given some, already uploaded some videos relating how to create company, how to prepare ledger, and how to pass different types of voucher entry in teleprime. You can go and find out uploaded video in playlist, जिसमें आपको ये सारा अलग अलग तरह का एंट्री मिल जाएगा। आपको उसको बेस लेके ये सारी एंट्री पास करनी है। इसका आंसर भी मैं आपको बता दूंगा, ऑलरेडी मेरे पास क्रिएट किया है, ये सारे ट्रांजेक्शन है, आप ये वन बाय वन स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पहला, ये नेक्स्ट वन, टोटल 22 ट्रांजेक्शन है। मैंने आपको बाद में उस साइड में बताया भी है कि उसमें उसके लिए आप कौन सा वाउचर यूज कर सकते हो। ये पहला है। अगर कोई भी वाउचर आपको डायरेक्टली क्रिएट करना है तो आप अल्ट सी करके भी बना सकते हो। ये इसका आंसर है, ये आंसर आना चाहिए आपका। अगर ये आता है मीन्स आपका आंसर बराबर है।
और यहाँ पे एक चीज़ और बताना रहेगा, जैसे ये वाउचर तो है, उसमें टेली प्राइम में देयर आर 2 प्री डिफाइंड लेजर इन टेली प्राइम, कैश अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये भी याद रखना है कि टेली प्राइम में 2 अकाउंट आपको लेजर कभी भी बनाना नहीं पड़ता, कैश अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो बाय डिफ़ॉल्ट ही बना हुआ होता है। फिर ये सम का मैं आपको आंसर अ, वीडियो में बता दूँगा, एक शॉर्टकट के किस तरह से किया है। अगर आपको वाउचर एंट्री विद इन्वेंटरी करना है विदाउट जीएसटी, तो आपको जैसे क्रिएट कंपनी तो बनाना ही पड़ेगा। अगर आपको कोई भी स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम कुछ भी बनाना है तो उसका सेम पाथ है। देखो, गेटवे ऑफ टैली, मास्टर, क्रिएट, इन्वेंटरी मास्टर, यहाँ तक तो सेम ही रहता है सब में। फिर लास्ट वाला पोर्शन चेंज रहता है। जैसे यहाँ पे देखो, अगर गोडाउन क्रिएट करना है तो यहाँ तक सेम है। स्टॉक ग्रुप की जगह पे गोडाउन आ गया। और फिर आपको गोडाउन क्रिएट करोगे तो आपको ये पूछेगा क्या ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट एक मेन गोडाउन है, आपको फिर भी नया गोडाउन क्रिएट करना है, तो आपको यस करके कर देना है। रावपुरा और निजामपुरा दोनों को प्राइमरी में ले जाना है। यूनिट क्रिएट करना है तो आपको सेम पाथ है, सिर्फ लास्ट में यूनिट में जाना है। आप फॉलो करोगे ये स्टेप्स तो आपको आराम से मिल जाएगा। एंड गेटवे ऑफ टैली में अगर आपको स्टॉक क्रिएट करना है तो इस तरह से सेम पाथ फॉलो कर सकते हैं। ये आपको एक एक्टिविटी दी है, जिसको एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें ये प्रोडक्ट नेम को आपको ग्रुप है, कैटेगरी है, यूनिट्स है, तो प्रोडक्ट नेम, ग्रुप, कैटेगरी, यूनिट्स आपको क्रिएट करना है। ये आपका स्टॉक आइटम बनेगा, ये ग्रुप बनेगा, ये कैटेगरी बनेगा, बराबर ना? इस तरह से आपको ये क्रिएट कर देना है। ये एक्टिविटी है, बहुत ईज़ी है। फिर आपको स्टॉक समरी एंड स्टॉक ग्रुप चेक करना है। फिर एक और एक्टिविटी करना है जिसमें नया कंपनी क्रिएट करके आपको देखो, पहले सबसे पहले ये लेजर बनाना है, अलग-अलग, सबका एक लेजर होता है। जैसे कैपिटल, कैपिटल में फॉल होता है, लोन्स फ्रॉम इंडियन बैंक, लोन्स एंड लायबिलिटी में फॉल होता है, प्रॉफिट एंड लॉस बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको अल्टर करना पड़ता है। जनरल रिज़र्व आपका रिज़र्व एंड सरप्लस में आज फॉल होता है, फर्नीचर फिक्स असेट है, एचडीएफसी बैंक में जाएगा, कैश उसको अल्टर करके जस्ट एंटर करना है। स्टॉक इन हैंड, स्टॉक इन हैंड में ही जाएगा और ये टोटल आपका बैलेंस शीट टैली होना चाहिए। फिर आपको द ओपनिंग स्टॉक आइटम डिटेल्स आर एज़ फॉलो। इसमें जो ये टीवी टाइप है वो आपका मॉडल स्टॉक ग्रुप बनेगा। स्क्रीन साइज़ है वो कैटेगरी बनेगा। मॉडल नंबर आपका स्टॉक आइटम बनेगा। क्वांटिटी है यानी यूनिट आपका पीसेस बनेगा और 2 गोडाउन आपको क्रिएट करना है, सयाजीगंज एंड तांदलजा। वन्स अगेन, टीवी टाइप स्टॉक ग्रुप, स्क्रीन साइज़ जो है वो स्टॉक कैटेगरी में जाएगा, मॉडल नंबर आपका स्टॉक आइटम में जाएगा, यूनिट में पीसेस आएगा और गोडाउन में सयाजीगंज एंड तांदल जाएगा। इस तरह से फिर ये सारे स्टॉक आइटम क्रिएट करने के बाद आपको सेल्स की एंट्री करनी है। एक कैश की सेल है, एक कैश का सेल है, एक क्रेडिट का सेल है और एक बैंक के थ्रू सेल है। फिर उसी तरह से परचेज़ की एंट्री करनी है आपको, यहाँ पे परचेज़ की एंट्री दी गई है। एंड फिर एक लोन का इंस्टॉलमेंट पे किया है और फर्नीचर का इंस्टॉलमेंट पे किया है। और फिर ये स्टॉक ट्रांसफर है, चेंज इन गोडाउन है। आप अल्ट प्लस F7 करके इसको यूज़ कर सकते हो। ये इसका आंसर दिया गया है। अब ये आंसर को अगर आपका आ रहा है तो ये आपका आंसर सही है। तो इस तरह से आप ये टैली पूरा चैप्टर 2 आपको मैंने रिवाइज़ करवा दिया और उससे रिलेटेड जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल है, उसका मैं आपको वीडियो दे दूँगा, उसके आंसर बता दूँगा कि इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में। So thank you very much for watching my video till end. If you have any doubt, you can write down in a comment box. I will try to make reply for the same. Have a nice day. Bye.